Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de... Hello and welcome back to my channel. Today I am going to be sharing a very heartfelt video with a heartfelt experience of when I was in Infosys Mysore training campus. So मैं मेरा Infosys Mysore training का पूरा experience share करने वाली हूँ. Also a little disclaimer, this is going to be really on a personal upfront. यहाँ पे technical details और वो सब ज़्यादा नहीं होगा. So if you were looking for something very technical, this isn't it. This is what do you say? An introvert's guide of how I survived in Infosys Mysore. So if you want to know all about my experience, if you want to know all about me, then please keep on watching the video. I am damn sure this video is going to be really exciting for you guys. Also हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, so please चाय वाय नाश्ता साथ में लेके बैठिए. I tried not to cut anything of this video because everything is a heartfelt experience from my side. So now without wasting any further time, let's jump right into the video. Okay, so I got the offer letter around 9th August and I had to join on 9th September. So like एक महीने पहले I got the offer letter and my entire family was so happy कि Infosys join कर रही है, ये है वो है. But me, I'll say very honestly, I was 10% happy and 90% what do you say, scared, because I knew this was going to be difficult. Because I told you the kind of person I was and I knew it कि मेरे लिए बहुत difficult होने वाला था. Because I spoke to everybody from my college who got selected in Infosys और कोई भी join नहीं कर रहा था. So I knew कि मुझे अकेले ही जाना था and that is going to be difficult. My dad had come all the way with me to Mysore and you know to just check all that. क्योंकि उन्होंने लिखा था offer letter में कि पेरेंट्स आ सकते हैं, अंदर तक नहीं बट छोड़ने के लिए तो आ सकते हैं. एंड फाइनली द डे अराइव्ड व्हेन माय डैड हैड टू लीव मी ओवर देयर एंड ही हैड टू गो. लाइक 9 सितंबर वाज अ संडे, सो हमको वहां पे रिपोर्ट करना था. वी गॉट आवर रूम्स एलोकेटेड, वी गॉट द रूम कीज एंड एवरीथिंग. दूसरे दिन जो इंडक्शन था उसके बारे में सब जो बताना था, दे ऑल टोल्ड अस. एंड उसके बाद वी हैड टू put all the luggage in our room. Now I had gone with 5 big suitcases. Like बहुत बड़ा था सूटकेस. ऐसे 5 सूटकेस थे. एक सूटकेस में सिर्फ मेकअप था. The other one had only what do you say, food items. Like my mother had packed so many chips, केले का चिप्स, येलो वाला, ब्लैक वाला. एक पूरा बैग कपड़ों का था. I mean, can you believe I bought like so many clothes कि मैंने 1.5 महीने तक, which is what 45 या 50 days तक लॉन्ड्री नहीं की थी. मैं इतने सारे कपड़े लेकर ही गई थी because I know myself. I am not going to carry my bag all the way to the laundry and then wash it and all that. तो मुझे पता था ऐसा नहीं होने वाला है. So I bought a lot of clothes. मतलब बहुत सारे कपड़े मैं लेकर ही गई थी कि धोने की जरूरत ही ना पड़े जल्दी. So that was that. So this was 9 September. हमको हमारी रूम कीज मिल गई थी. हमको ज्वाइन कर मतलब अभी फिर रूम से सामान रख दिया and then we had to meet our parents and say the final goodbye. So now this is really personal. I haven't shared it with anybody. मैं जब वहाँ गई थी तो जब शुरू में था I was feeling really excited because हाँ नया रूम मिला है. There was a girl who was going to be my room partner and everything. So बहुत सारा कुछ नया तो हो रहा था. लेकिन there was a 10% hint in in the back of my mind I had to say goodbye to my father. That was going to be the most difficult part of the entire journey. Like I am not a kind of person जो फैमिली के सामने रो दे या इतना इमोशनल हो जाए. I am not that kind of a person. But I am just telling you, I can still feel it in my veins when I said goodbye to my father. I don't know how I dealt with it, how I became so strong, how I just figured that out कि हाँ चलो अब goodbye बोलते हैं. That feeling still comes to me. I cannot just imagine it in words. And I'm sure जितने भी लोग वहाँ पे आए थे, जितने भी मेरे friends बने थे, we almost talk about it all day. Like हम लोग बाद में भी बात किया करते थे, the way we said goodbye to our parents.
सो दैट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर अ गर्ल लाइक मी, जो एक दिन भी बिना मतलब के मम्मी के बिना नहीं रहती। इवन इफ माई मम्मी गोज टू नानी का घर, आई ऑलवेज से मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी। सो दैट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट फॉर मी। सो या दैट्स दैट। और 9 सितंबर को वॉज अ संडे, देन 4 बजे उनको कुछ चले जाना था वहां से, सो दे वेंट, ऑल द पेरेंट्स जस्ट लेफ्ट। So then I went to my room. After that I had some lunch or I had some snacks or something, and I then went to my room. Actually I had my dinner. Actually वहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है, so if you are new तो पहले 10 दिन तो तुम्हें यही फिगर आउट करने में लगता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। So I actually figured it. I figured out the रास्ता like after a month of me getting over there. तब मुझे सब शॉर्टकट्स वगैरह पता चले, वरना 1 महीने तक मैं बिना मतलब का आधा पौना किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती थी वहां पे। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग रास्ते थे वहां पे। सो फर्स्ट नाइट जब मैं वहां पे थी, सो मुझे सबसे करीब वाली रेस्टोरेंट करीब वाला फूड कोर्ट ढूंढने में ही कितना सारा टाइम लग गया था। इट वॉज कॉल्ड ओएसएस, एंड वो गर्ल्स के क्या कहते हैं, गर्ल्स के रूम से काफी नजदीक था, और वहां पे नॉर्मल खाना मिलता था, लाइक वेजिटेरियन। आई एम नॉट अ वेरी बिग फूडी, मुझे ज्यादा खाना पचता नहीं है। सो वहां पे ये अच्छा मिलता था, कॉर्न पुलाव, टोमेटो राइस एंड लेमन राइस, एंड ये सब बहुत अच्छा मिलता था। सो मैं हमेशा वहीं जाती थी। ऑल्दो सम पीपल यूज टू चूज टू गो फॉर फूड कोर्ट्स विच वर लाइक 1.5 kilometers अवे, दैट वॉज कॉल्ड फिएस्टा, but that was basically good for non-vegetarians. Like I am a vegetarian, that too Jain. मेरे आधे टाइम तो मैं कांदा लहसुन भी नहीं खा सकती हूँ। So I always used to go to OSS, वहाँ पे मस्त डोसा मिलता था, and other times I used to have corn pulao, my favorite. बिल्कुल तीखा नहीं होता था, बिल्कुल नॉर्मल होता था, just like I like my rice. So मैं हमेशा वहीं जाती थी। So that was that about the first day. Then दूसरे दिन, then when I slept, first of all तो मुझे उस रात को नींद नहीं आई थी। 9 सितंबर को आई कुड ओनली थिंक अबाउट माई डैड एंड वॉट ही मस्ट बी डूइंग राइट नाउ, और यू नो मैं कैसे सर्वाइव करने वाली हूँ, यही सब। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन आई गॉट अप ऑन 10 सितंबर 8 AM in the morning, my heart was literally beating at, I don't know, 185 or 190 beats per second. Like I opened my eyes to a room that I was नॉट नोन बिफोर, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और ही आ गई हूँ। आई एम अलोन ओवर हियर। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। ऑल्दो माई रूममेट वॉज अ स्वीट हार्ट, शी वॉज सो नाइस टू मी। उसके साथ रह के आई जस्ट फेल्ट लाइक आई वॉज होम। शी वॉज वेरी वेरी काइंड टू मी। लेकिन आई ऑलवेज हैव अ हैबिट कि मुझे उठ के मेरी मम्मी को देखना है। सो मेरी मम्मी तब दिखी नहीं, मुझे कोई नहीं दिखा, एक अलग सा प्लेस दिखा, दैट वॉज बैड. So I just had a little panic attack in the morning, but I thought to myself कि नहीं, अब करना है तो करना है. So I just got up that day. I wore my favorite kurti and I just started कि चलो अभी figure out करते कि रास्ता कैसा है, because वो induction hall was almost like 2 kilometers away from where my room was. तो वो figure out करते करते आधा घंटा हो जाने वाला था. So I just got up, got my favorite kurti on, and I just walked out of the room. And during the break time of induction, I met 3 girls who were also from Pune, and one of those girls already knew me from a previous previous job interview that we had. So वैसे करके 3 of those girls became my friends. So and they used to speak in Marathi. They were from Pune. They also were homesick, so we had a lot of things in common. So I instantly bonded with them. And हाँ चलो, अब मेरे पास कोई था जिसके साथ मैं लंच कर सकूँ, डिनर कर सकूँ, कुछ दिल की बातें शेयर कर सकूँ, कोई तो था मेरे पास. So I was really happy. So ऐसे करके 3 दिन इंडक्शन के चले गए. इंडक्शन by the way is very boring. I should not say that, but everybody used to say कि इंडक्शन बहुत बोरिंग होता है, and everybody used to just scare कि हाँ तो टेस्टिंग वालों को पता नहीं पुणे मिलता है या नहीं. एंड फ्रॉम डे 1 मेरे दिमाग में यही था, मुझे घर वापस जाना है. आई एम नॉट गोइंग टू बी गोइंग टू त्रिवेंद्रम और केरला और एनी अदर प्लेस देन माई होम. आई एम गोइंग टू माई होम, दैट्स इट, एट एनी कॉस्ट. वरना मैं ये सब छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी. सो दैट वॉज दैट. एंड फिर इंडक्शन के 3 दिन खत्म हुए.
यू नो वीकेंड आया, सबसे पहला वीकेंड आफ्टर आई ज्वाइन इन्फोसिस, तो वो चला फिर बहुत सारे दिन। तो सैटरडे जैसे ही आ गया, आई कॉल्ड माई डैड कि मैंने बोला बहुत बोर हो रहा है यार पापा, क्या करूं मैं, अभी यहाँ पे कुछ करने के लिए भी नहीं है, एंड आई डोंट हैव दैट मेनी फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स थे वो बाहर आ नहीं रहे थे। सो पापा बोले, पापा जस्ट सेड के डू वन थिंग, गो आउट, catch this bus and go to the city center, visit Mysore Palace and there is a Jain Derasar, वहां पे ढूंढ लो वहां पे जाके, and वहां पे you can spend your time. So I thought चलो देखते हैं कितना मुश्किल हो सकता है. So just imagine a 19 and a half or 20-year-old girl like me, who is naive, who doesn't know anything, who doesn't know the local language, who doesn't know any of the roads. I just packed my purse, I just went to the bus stop. मैंने उसको बोला सिटी सेंटर जाना है, तो सिटी सेंटर की मैंने टिकट ली और 16 रुपए की टिकट में मैं वहां पे बैठ गई, एंड आई रीच्ड द सिटी सेंटर. आई ओपन्ड गूगल मैप्स एंड गूगल मैप्स से ढूंढ के आई फाउंड द जैन मंदिर, आई फाउंड द मैसूर पैलेस, वॉकिंग डिस्टेंस पे, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था वहां पे. सो आई फाउंड दैट एंड आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी. फिर थोड़ा और घूमते घूमते मैं आगे चली गई. देन आई फाउंड मोर. नाउ वो बिग बाजार जैसा सुपरमार्केट स्टोर है, सो मुझे मोर मिला. सो मैंने वहां पे बहुत सारी शॉपिंग की, लाइक मैगी, ये वो सूप जो इंस्टेंट सूप बन जाता है, वो सब मैंने खरीद लिया, बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारा सामान, वो चमची और बोल वगैरह सब दिया था. सो आई फाउंड दैट एंड बिलीव मी, आई वॉज सो रिलीव्ड. मैं आधे घंटे तक जैन मंदिर से, हमारे देरासर से उठी नहीं थी. आई जस्ट टोल्ड भगवान कि मुझे घर वापस जाना है, कुछ भी करो, दुनिया एक कर दो, मुझे घर वापस जाना है. तो आई रियली सैट डाउन फॉर लाइक मोर देन हाफ एन आवर. आई जस्ट यू नो, आई हैड नेवर मेडिटेटेड बिफोर इन माई लाइफ, लेकिन मैंने मेडिटेट किया वहां पे. आई जस्ट सैट लाइक दैट नम्ब ओवर देयर. एंड हाँ, तो ये था मेरा फर्स्ट वीक एट इन्फोसिस मैसूर. ऑल्दो मैं रोज उठती थी, तो रोज मुझे थोड़ा बहुत पैनिक अटैक तो आता ही था, बिकॉज इट वॉज रियली रियली न्यू फॉर मी. फिर धीरे धीरे वो सब हम लोगों को क्लासेस वगैरह असाइन हुई, फिर धीरे धीरे कोडिंग वगैरह सिखाना शुरू हुआ. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. देन द डे केम, 10 सितंबर को मैं ज्वाइन हुई थी, और 30 या 28 सितंबर को मुझे सैलरी मिली थी, लाइक लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ. दैट वॉज माई फर्स्ट सैलरी. सो यू नो, वो फर्स्ट सैलरी का मजा ही कुछ और होता है. आई कॉल्ड माई डैड अप एट 8:30 इन द मॉर्निंग, एंड मेरे डैड को बोला कि फर्स्ट सैलरी आई है. सो ही वॉज टेलिंग हाँ कितने आए, तो मैंने बोला 10,000 आए, क्योंकि सिर्फ 20 दिन की सैलरी आई थी. सो ही वॉज लाइक सो हैप्पी दैट यू आर नाउ एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड आई कुड रियली टेल हाउ प्राउड ही वॉज फ्रॉम द वे ही स्पोक टू मी. सो आई वॉज रियली हैप्पी, एंड मैंने सोचा कि चलो जितने भी दिन यहाँ गुजारे हैं उसका कुछ तो प्राउड फील कर रहे हैं मेरे डैड. सो जितना भी तकलीफ मैं झेल रही हूँ, इट्स ऑल गुड. बट एक्चुअली कोई तकलीफ थी नहीं. देर वॉज हाउस कीपिंग, देर वॉज लॉन्ड्री सर्विस, इतना अच्छा खाना था वहां पे, सारी फैसिलिटीज थी. द ओनली प्रॉब्लम विथ मी वॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन स्टे यू नो उसके घर से दूर. सो मेरा उतना ही तकलीफ था. हाँ, ये सेम चीज पुणे में होती ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आई वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम माई मदर, फ्रॉम माई फैमिली. दैट मेड मी रियली नर्वस. ओके, सो ऐसी थी मेरी फर्स्ट सैलरी की कहानी. देन धीरे धीरे क्या होता था, वन फाइन डे आई विल टेल यू वन इंसिडेंट विच चेंज्ड मी कम्प्लीटली. नाउ क्या होता था, वी ऑलवेज यूज टू हैव डिनर टुगेदर, मतलब मेरे साथ कोई ना कोई एक दोस्त वगैरह कुछ तो होता था. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, वन डे आई वेंट आउट. एक्चुअली मैं मंदिर गई थी, कुछ वीकेंड ही था, तो मैं मंदिर गई थी, एंड व्हेन आई रिटर्न सबका डिनर हो चुका था. आई जस्ट थॉट कि ये लोग मेरे लिए रुके क्यों नहीं. सो एंड आई एम अ रियली शाय पर्सन, मुझे तब अकेले खाने की आदत नहीं थी. सो बहुत अकेला लगता था मुझे. सो उस दिन आई जस्ट थॉट मैं इतनी थकी हूँ, एंड व्हाई डिडंट एनीबॉडी वेट फॉर मी, व्हाई आर दे डूइंग दिस टू मी. एंड मैं डोसे की लाइन में रुके रुके आई क्राइड सो मच कि मुझे अब अकेले खाना पड़ेगा, ये वो. तो वहां पे देयर वॉज
देयर वर 2 पीपल, अ गर्ल एंड अ बॉय. उनके साथ मैंने पहले बात की हुई थी ऐसे ही लाइन में. सो दे टोल्ड मी, दे आस्क्ड मी, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. सो मैंने उनको ऐसे ही झूठ बोल दिया कि मम्मी पापा की याद आ रही है एंड स्टफ. उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे को अकेले खाने में दिक्कत है. सो उस दिन लेकिन जब मैं डोसा लेके बैठी वहां पे, फाइनली आई जस्ट वाइप्ड माई टीयर्स ऑफ एंड आई जस्ट टोल्ड टू माई सेल्फ कि इसके बाद लंच और 99% डिनर मैं अकेले करूंगी. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स के कोई मेरे साथ हो तो ही मैं खुश रहूंगी. आई एम गोइंग टू बी रियली ओके विथ हैविंग लंच एंड डिनर अलोन. सो वो दिन है और आज का दिन है. मैं जब भी ऑफिस जाती थी, आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग डिनर एंड हैविंग लंच अलोन. मैं लंच, ब्रेकफास्ट, चाय वाय सब अकेले करती हूँ टू गेट माई सेल्फ इन टू द फीलिंग आई डू नॉट नीड एनीबडी एंड यू ऑल्सो डू नॉट नीड एनीबडी. तुम्हारी खुशियों के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो. तुम्हारी खुशियां किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है. ये बहुत बड़ी बात मैंने उस दिन सीखी थी. मेरी आंखें इतनी सारी सूज गई थी. आई जस्ट वेंट टू माई रूम एंड जस्ट चद्दर ओढ़ के सो गई थी मैं. सो दैट वॉज अ वेरी बिग लेसन जो मैंने सीखा वहां पे. उसके बाद मैं चाय वाय, लंच वंच सब अकेले ही करती थी एंड यू नो मजा आता था अकेले करने में भी. आई यूज्ड टू जस्ट प्लग इन माई ईयरफोन्स, एक मूवी लगा देती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट यू नो टाइम कहाँ निकल जाता था पता ही नहीं चलता था. सो धीरे धीरे ऐसा हुआ एंड देन यू नो एग्जामिनेशन फर्स्ट वो जेनरिक होता है तो उसकी एग्जामिनेशन का टाइम आ गया. सो आई गेव द एग्जामिनेशन नाइसली एंड एवरीथिंग वाज नाइस. फिर बीच में देयर वाज दशहरा. तो दशहरा आया था बीच में और 3 दिन की छुट्टी थी. सो आई थॉट 3 दिन की छुट्टी है, एक आध दिन छुट्टी मैं और ले लेती हूँ एंड लेट्स गो होम. सो फिर मैं घर गई. फिर मैंने अकेले, कैन यू बिलीव, अकेले मैंने टिकट बुक की. अकेले आई जस्ट फाउंड अ बस एंड बस में बैठ के मैं अकेले सामान वामान लेके यहाँ पे आ गई. माई डैड केम टू द बस स्टॉप टू पिक मी अप एंड मैं 3 दिन के लिए घर आई. नाउ आई कैन नॉट टेल यू, मैं घर आई एंड मुझे आज भी याद है मम्मी रोटी बना रही थी एंड मैं रोते रोते मम्मी को बोल रही थी मुझे वापस नहीं जाना है, जस्ट टेक मी बैक, आई कैन नॉट गो ओवर देयर, मुझे नहीं जाना है वापस एंड ऑल दैट. सो माई मॉम वाज लाइक, तुम इतना आधे रास्ते आके छोड़ दोगी, अब तुम सोचो फिर लोग क्या कहेंगे, डैड इतना तुमको छोड़ने आए हैं. एंड टू माई सरप्राइज जब मैं वापस मैसूर गई, आई वॉज 100 times मोर कॉन्फिडेंट देन वॉट आई वॉज बिफोर. लाइक सब चेंज हो गया था. मुझे हमारी फील्ड्स मिल गई थी. लाइक आई वॉज इन टेस्टिंग एंड ऑल माई अदर फ्रेंड्स वर इन डिफरेंट, लाइक क्या कहते थे उसे, आई डोंट नो, IMS या कुछ कहते थे अलग. तो वो लोग उस फील्ड में चले गए और मैं अकेली टेस्टिंग में चली गई. बट टू माई सरप्राइज आई फाउंड अ रियली नाइस पर्सन जो मेरे बाजू में ही बैठती थी. हर नेम इज स्मृति. शी इज स्टिल माई फ्रेंड एंड यू नो शी इज डिटो लाइक मी. उसके साथ रह के मुझे पता ही नहीं चला कि ये लास्ट का 1.5 महीना कब और कैसे निकलने. सो एक्चुअली इन्फोसिस मैसूर वॉज रियली फन. वहां पे बहुत सारा एक्टिविटीज होता था. लाइक ट्रेडिशनल डे था तो हमने बहुत सारे फोटोज खींचे थे. इफ आई फाइंड सम पिक्चर्स आई विल इंसर्ट. डीजे नाइट थी तो प्रभुदेवा सर के जो डैड हैं वो आए थे. सो बहुत सारा कुछ अमेजिंग होता था वहां पे. बट या एवरीथिंग वॉज वेरी फाइन. बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई यूज्ड टू गो बैक टू माई रूम, मुझे घर की याद आती थी. ओके, सो लकीली हमारे रूम्स में टीवी था और लकीली जब मैं घर में पहुंचती थी तभी ही मॉडर्न फैमिली आता था स्टार वर्ल्ड पे. सो मैं रोज रूम में पहुंच के मॉडर्न फैमिली देखती थी एंड यू नो माई लव फॉर मॉडर्न फैमिली, इट्स लाइक होम टू मी. बिटवीन ऑल दिस, लाइक जब से फर्स्ट या सेकेंड डे से ही मैंने वहां पे हमारा 1 घंटे का पूजा होता है विच इज कॉल्ड सामायिक. मैंने सामायिक करना शुरू कर दिया था. मैंने भगवान को बोला मैं जितने दिन इधर हूँ मैं सामायिक करूंगी, मैं 1 घंटे की पूजा करूंगी, लेकिन इसके बदले आप मुझे सिर्फ मेरे घर वापस भेज दो. मुझे बस पूना ही चाहिए लोकेशन में, मुझे बस घर जाना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे. एंड मैं ये सब कंटिन्यू कर रही थी एंड देन थिंग्स चेंज्ड. थोड़ा थोड़ा टाइम बीतने लगा. फिर एक दिन मंदिर में जब मैं बैठी थी तब मुझे एक आंटी मिली. उनका नाम था करुणा आंटी.
नाउ उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 4-5 सैटरडे से रोज देखती हूँ, तुम आती हो यहाँ पे, लेकिन मैंने उसके पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इन्फोसिस मैसूर में काम करती हूँ और मैं पुणे से आई हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता था, तो मैं देरासर ढूंढते ढूंढते पहुंच गई हूँ यहाँ पे। सो शी वॉज सो काइंड टू मी। उन्होंने अकेले अनजान शहर में अनजान लड़की को आई फेल्ट सो मच लाइक होम। सो एक दिन उनका कुछ फंक्शन था मंदिर में, जो दूसरा एक मंदिर था थोड़ा दूर, वहां पे उनका कुछ फंक्शन था। सो शी टोल्ड मी कि तुम्हें आना ही है, आई एम इन्वाइटिंग यू, तुम्हें आना ही है। एंड ऑल्दो वहां तक कोई बसेस नहीं जाती थी, मैं वहां पे रिक्शा करके, थोड़ा चल के, थोड़ा बस में, कैसे तो भी करके पहुंच गई थी वहां पे। सो उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी चॉकलेट बर्फी बचा के रखी थी। मैंने कितने दिनों बाद मूंग दाल का हलवा खाया। देरासर भी था वहां पे एंड सब अच्छा था वहां पे। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फैमिली, लाइक मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, लाइक शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे वो इंट्रोड्यूस करवा रही थी मुझे अपनी फैमिली से, विच इज ग्रेट बिकॉज ऐसा कोई नहीं करता है। एंड एक अनजान शहर में आई फाउंड अ फ्रेंड, आई फाउंड व्हाट यू से अ सेफ होम इन एन आंटी। वो इतनी प्यारी थी, मुझे ऑल्दो उन्हें गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ, if I ever remember Mysore, I will always remember Karuna aunty. So if she is watching, if anyhow this video is reaching her, thank you so much. I will never forget you. So इस तरह मुझे आंटी मिली ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे। फिर जब भी मैं जाती थी मुझे मिलती थी आंटी, हम लोग थोड़ा बात करते थे और मैं निकल जाती थी फिर मैसूर पैलेस के लिए और फिर वहां पे मोर में थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। सो ऐसे मेरे दिन गुजर रहे थे। एंड फाइनली जब लास्ट का थोड़ा टाइम बाकी था, लाइक क्या बोलते हैं 15 डेज नहीं, एक हफ्ता बाकी था फाइनल एग्जाम के दिन, और फाइनल एग्जाम के 2-3 दिन बाद यू वर सपोज टू गेट योर लोकेशन। अभी मैं तो डे 1 से सिर्फ लोकेशन के बारे में सोच रही थी कि मुझे घर जाना है। सो मैंने पापा को बोला कि 31 नवंबर को मेरा एग्जाम है और उसके बाद 2-3 दिन में लोकेशन आ जाएगा। तो दे वर सपोज टू कम टू पिक मी अप, मतलब वो मुझे घर ले जाने के लिए आए थे। सो व्हाट हैपेंड वाज 31 नवंबर को मेरा एग्जाम हुआ एंड वो लोग आए भी 1 या 2 दिसंबर को, आई एम नॉट श्योर। सो वो लोग आए भी, बट अनफॉर्चुनेटली लोकेशन देने में उन्हें 15 दिन लग गए। नाउ इनकी टिकट सिर्फ 1 हफ्ते की थी, 3-4 दिन की थी। सो मैं 3-4 दिन उनके साथ रही, वो लोग जहाँ पे होटल में रहते थे वहां पे मैं रही। एंड फिर 3-4 दिन हमने लोकेशन का वेट किया। आई हैड 2 or 3 मेंटल ब्रेकडाउन्स इन माई रूम, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू। आई लिटरली हैड ब्रेकडाउन्स। मेरे को बोला मेरे को भी घर जाना है यार, अभी हो गया ना 3 महीने। सो आई रियली वॉन्टेड टू गो होम, बट वो आ नहीं रहा था। सो फाइनली आई हैड टू उनकी टिकट थी 4 या 5 दिसंबर की एंड दे हैड टू गो होम। सो फिर मुझे लगा कि अब उन्हें जाना ही चाहिए एंड उनको अब गुड बाय बोलने का टाइम आया है। एंड आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू कि मेरे को उनको गुड बाय बोलना कितना डिफिकल्ट था। लाइक माई मॉम, डैड एंड सिस्टर, ये तीनों आए थे एंड दे हैड टू लीव। सो इट वॉज लाइक हार्ट ब्रेकिंग। लाइक मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मेरा इतना हार्ट ब्रेक कभी लाइफ में हुआ है। आई एम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, मैं चीजों को जल्दी सीख लेती हूँ, जल्दी आई टोल्ड यू आई लर्न टू हैव माई फूड अलोन। लेकिन दिस वॉज अ ब्लो, मैं बहुत टाइम तक उभरी नहीं थी। सो वो लोग जहाँ पे रूम में रह रहे थे वहां पे मैंने उनको फाइनल गुड बाय बोला। रिक्शा में बैठ के दे लेफ्ट, उनके सामने ही देयर वाज अ सुपर मार्केट, वो मोर सामने ही था। सो मैं वहां गई, आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड सुपर मार्केट के बीच में ट्रॉली हाथ में लेके, एक हाथ में फोन लेके जो मैं रोई हूँ, आई स्वेयर 15 से 20 लोगों ने तो मेरे को देखा ही होगा रोते हुए।
इतना फूट फूट के जो मैं रोई हूँ वहां पे। तब तो मास्क भी नहीं होते थे, अब तो खैर मास्क है तो मैं थोड़ा मुंह छुपा लेती हूँ, किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ। तब मास्क नहीं होते थे और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा होगा एंड आई कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो मुझे लेने आए थे और मैं उनके साथ गई नहीं। सो इतना मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है मेरा उस दिन। मैं आधे पौने घंटे तक वहीं रोती रही हूँ मोर के अंदर एंड समहाउ आई जस्ट फिगर्ड आउट स्ट्रेंथ के हाँ अब जाना ही पड़ेगा वापस रूम पे। सो आई जस्ट टुक द बस फ्रॉम सिटी सेंटर अगेन एंड मैं वापस रूम में चली गई। सो ऐसा था ये, इट वॉज रियली डिफिकल्ट। दे लेफ्ट ऑन लाइक 3rd और 4th of December एंड उसके बाद देर वर 2-3 days मैं थोड़ी ठीक रही मतलब 2-3 days देर वॉज नथिंग। उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि अब आएगा करके एंड उस दिन भी नहीं आया। सो आई कॉल्ड माई डैड एंड आई सेड टू हिम वाई डिड यू सेंड मी ओवर हियर, क्यों भेजा आपने मुझे इधर। हाँ मैं कुछ और काम कर लेती, मैं रिलायंस में जॉब कर लेती, मैं कॉल सेंटर में काम कर लेती, मुझे घर नहीं छोड़ना था, क्यों भेजा मुझे इधर। आई वॉज सो एंग्री, आई वॉज सो मैड एट हिम। सो बट ही टोल्ड मी कोई बात नहीं, आ जाएगी लोकेशन, ये है वो है एंड बहुत सारे ब्रेकडाउन हुए थे मेरे। पीपल नो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगा के पागल किया है मैंने उसको। आई कॉल्ड माई मदर, आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ हर फॉर लाइक half an hour। बहुत सारे मेंटल ब्रेकडाउन हुए। आई डिड नॉट हैव फूड दैट इवनिंग एंड फिर मैं सो गई। फिर दूसरे दिन मैं उठी, यू नो आई एम अ फाइटर। मैं दूसरे दिन उठी एंड मैंने सोचा अगर भगवान की यही मर्जी है, अगर वो लेट ही करना चाहते, अगर वो मुझे वापस नहीं भेजना चाहते तो ठीक है, फिर हम भी दिखाएंगे कि हम कितने स्ट्रांग है और अब हमको कहीं भी भेजने तो हमें फर्क नहीं पड़ता। सो इस मेंटालिटी के साथ में उठी एंड आई वाज जस्ट लिविंग द रेस्ट ऑफ द 1 week लाइक दैट ओनली। हाँ स्ट्रेंथ में जो आएगा देखा जाएगा, जो आएगा देखा जाएगा वैसे। एंड फाइनली वन फाइन डे मैं ऐसे ही सैटरडे या फ्राइडे या कुछ तो था एंड मुझे बहुत कंटाला आ रहा था रूम में। सो मैंने सोचा अभी मैं बाहर जाती हूँ मैसूर पैलेस के वहां पे, या मैसूर पैलेस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। मैसूर पैलेस इज अ प्लेस जहां पे मैं जाती थी व्हेन आई वाज रियली अलोन। बाहर स्कूटर्स या कुछ तो पार्क होता था बाहर वहां पे, आई डोंट रिमेम्बर। वहां पे मैं बैठती थी और मैसूर पैलेस की एग्जैक्टली 15 मिनट लाइटिंग होती थी सैटरडेज के दिन। तो मैं बैठे बैठे मैसूर पैलेस को देखती थी और सोचती थी कि ये पुणे में क्यों नहीं है, ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं है, वाई कैन नॉट आई सी दिस एवरी डे। इट वॉज सो सूदिंग, सो प्योर, बहुत मस्त था वो पैलेस। मैं जब भी अपसेट होती थी मैं वहां पे आधा पौना घंटा यूं ही बैठे रहती थी। आई जस्ट स्टेयर ब्लैंकली एट द मैसूर पैलेस। आई लव्ड इट सो मच। सो हाँ ये था मैसूर पैलेस। तो मैं ऐसे ही निकल रही थी बाहर कि चलो जाएंगे मैसूर पैलेस में, थोड़ा टाइम पास करके आएंगे। सो ऐसे ही मैं निकल रही थी बाहर एंड माई फ्रेंड कॉल्ड मी। यहाँ पे सेल लगा है अभी ना, इन्फोसिस मैसूर में भी और पुणे में भी सेल्स लगाता है। देर आर व्हाट यू से फेयर्स, मतलब वो स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। सो माई फ्रेंड कॉल्ड मी कि यहाँ पे स्टॉल्स लगे, आजा शॉपिंग करेंगे। सो आई थॉट चलो घूमने ही जाते हैं, तो वहां से होते हुए बाहर चले जाएंगे। सो मैं वहां गई एंड मैंने देखा कि हाँ चलो ये साड़ीज वाड़ीज है ये वो। आई वॉज जस्ट बाइंग ज्वेलरी और समथिंग, कुछ तो खरीद रही थी मैं। एंड एक दूसरी फ्रेंड का मेरी फ्रेंड को कॉल आया एंड शी सेड जल्दी आओ लोकेशन आ गई है। सो इट वॉज लाइक 6 in the evening और हमें लोकेशन आई थी। आई रैन टू द क्लासरूम जहाँ पे सब कंप्यूटर्स थे। मैं और मेरी फ्रेंड हाथ पकड़ के जो भागे हैं वहां पे। सो वो मेरे बाजू में ही बैठती थी, तो हम लोग वहां पे गए एंड स्क्रॉल करना था, मतलब बॉटम पार्ट में लोकेशन था मेरे नाम के, बहुत सारा बॉटम पार्ट में। सो मेरा हार्ट वॉज लाइक बीटिंग अगेन एट, आई कुड हियर माई हार्ट बीट स्टिल माई ईयर्स। सो उतना ये हो गया था एंड आई वाज लाइक नहीं रुक जा। तो एग्जैक्टली 15 मिनट मैंने भगवान का नाम लिया है, मतलब हमारा वो उवा सगरम करके होता है, मैंने 27 उवा सगरम का जाप किया है। एंड देन with all my strength, all my belief, I just scrolled down and वहां पे लिखा था पुणे। I was so freaking happy। मैं 10 मिनट तक रोई हूँ। 10 मिनट तक रोते रोते ही मैंने मेरे डैड को वीडियो कॉल किया था एंड आई सेड लोकेशन आ गई है, पुणे आ गया है, आई एम कमिंग होम। सो आई वॉज सो हैप्पी। मेरे मॉम डैड भी इतने खुश थे। आई वॉज लाइक बस अब कोई टेंशन नहीं है मुझे, अब मैं वापस घर जा रही हूँ।
सो दैट वॉज दैट। एंड फिर मैं खुशी खुशी झोला उठा के बाहर गई। आई जस्ट वेंट टू माई देरासर। 15 मिनट वहां पे बैठ के भी रोई हूँ। भगवान को थैंक यू बोला है कि आपने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे वापस घर जाने मिला। बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल यू नो जिनको जो पूना के ही थे, लेकिन उनको भुवनेश्वर मिला, किसी को त्रिवेंद्रम मिला। बहुत सारे लोग अपने घर से दूर थे। बहुत सारे लोग रो रहे थे बिकॉज दे कुडंट गो टू देयर हाउसेस। मेरे बाजू में जो बैठी थी माई फ्रेंड, शी गॉट भुवनेश्वर। सो आई वॉज सो व्हाट डू यू से थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। फिर मैंने पैकिंग शुरू कर दिया। लाइक आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू कि पैकिंग करने में इतना भी मजा आता है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने पैकिंग शुरू कर दी। फिर मैं ऐसे ही एक दिन लंच करने थोड़ा दूर वाली फूड कोर्ट में जा रही थी, तो मुझे कॉल आया कि रिलीज डेट आ गई है। सो आई वॉज रियली हैप्पी। सो मैंने क्विकली मोबाइल पे, तब मेल था तो मोबाइल पे मेल चेक कर लिया। तो लकीली मेरा रिलीज डेट दूसरे दिन का ही था और दूसरे दिन और मेरा ज्वाइनिंग डेट 4-5 दिन बाद था। सो आई थॉट बस कल है, कल ही निकल रहे हैं। सो आई जस्ट बुक्ड द टिकट। मैंने टिकट बुक कर ली, सब कुछ पैक कर लिया एंड फाइनली मैंने वो इतनी बड़ी 25-25 किलो की एक बैग लेकर फाइनली मैं बाहर तक पहुंची। टैक्सी बुक की एंड सीधा वहां पे गई, बस स्टॉप के वहां पे। सो एंड दैट इज हाउ आई बॉट 5 बैग्स। 25 से भी ज्यादा किलो के वजन के बैग्स में उठाकर बस में डालकर यहाँ ले आई। एंड इट वॉज 5 or 6 in the morning जब मैं यहाँ पे पहुंची थी। बहुत ठंडी थी उस वक्त, दिसंबर का महीना था। माई डैड केम टू पिक मी अप। सो टू कंक्लूड ऑल ऑफ दिस आई वुड जस्ट से मैसूर वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। मुझे नहीं लगता कि अगर मैसूर नहीं होता तो आज मैं जो हूँ मैं वो होती। I started my YouTube channel because of the salary I got from Infosys. I am a strong person right now because of the experiences I've had at Mysore. So I cannot begin to thank God कि उन्होंने मुझे ये opportunity दी. I cannot begin to thank everybody who met me at Mysore, who has helped me, जो मेरे साथ रहा, जिन्होंने मुझे रोते हुए देखा, but still you know they always stood by me. Okay, so that is it for today. I hope you liked the video, and if you did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will meet you all in the next video. Till then, keep smiling.